Hello students, I welcome you all on behalf of our entire family. Okay, now first of all, congratulations for taking the first step towards your career in science. Myself, Narendra Ranawat, and I am going to teach you physics. Alright, now when I say physics, now even before I start with physics, what exactly is science? So, yes, had this been a live class, I would have asked what exactly is science, but let me tell you the answer. We say that science is basically systematic study of knowledge. I repeat, science is systematic study of knowledge. And in science, I am going to explain you physics. Now, what exactly is physics? So, we say physics is study of natural phenomena. Physics is study of natural phenomena. Or I can put it in a very simple way, study of anything and everything that is taking place around us. वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है उसी की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं. जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, वाई? सन सेट्स इन वेस्ट, वाई? रेनबो हैज 7 colors, वाई? So most of your doubts will be answered in physics. Now, physics we have further divided into 6 simple sections. The first section is mechanics. Now, when I say mechanics, it basically deals with chapters like or concepts like force, energy. If you have come across the term work, power, etc. So these are the concepts or the terms that you are going to discuss in mechanics. The second part that we have under physics is waves. So this is your first part. Now second part that we have is waves and oscillation. Now in waves and oscillation, yes, when I say wave, the first thing that comes to your mind is sound waves or light waves. And when I say oscillation, the first example that strikes your mind is pendulum. So study of these phenomena will be under that heading waves and oscillation. We can further, so in waves we can have sound waves or pendulum in say oscillation. Third section that we have in physics is about heat. Yes, boiling, melting, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, ये सारे टर्म्स आपने डिस्कस किए होंगे या सुने होंगे एटलीस्ट अंडर द सेक्शन कॉल्ड एज हीट. देन नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव इन फिजिक्स इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. वेरी वास्ट. So electricity and magnetism. Now when I say electricity, magnetism, the first thing that comes to your mind is correct, electric current. You had a full chapter, effects of electric current. Magnetism, bar magnet. So when I say electricity and magnetism, basically I am going to talk about current, charge, potential, सही सोच रहा, resistor, very good, emitter, voltmeter, bar magnet, your favorite Oersted experiment, AC generator, very nice. So these are the things that we are going to discuss under electricity and magnetism. Then we have a section called as light. Yes, wonders of light. You had refraction of light and ray optics. So light, yes, rainbow, correct. When I say light, आपको rainbow सबसे पहले strike होता है, because वो एक वंडरफुल फिनोमेना इन नेचर है जो हम वी ऑब्जर्व इन नेचर एंड वी स्टडी इन अंडर द हेडिंग लाइट. Yes, lenses also, prism also. So these are the section that we are going to discuss or cover under the heading light. And the last one is modern physics. अब इसके नाम से ही आपको गेस करने को हो जाएगा. मॉडर्न फिजिक्स मतलब वो फिजिक्स जो लेटेस्ट आज के डेज में है, और उसमें जो सबसे फर्स्ट दैट कम्स टू आवर माइंड इज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज.
Okay, so these are six broader classification that we have under physics: mechanics, waves and oscillation, heat, electricity, magnetism, light, and modern physics. Now in this bridge course, what we are going to do is, rather what I am going to do is, I will try to cover small concept for most of these topics that you already studied in class 9 or in class 10. मतलब ये जो 6 sections है, इनमें से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आपको आते हैं, उन्हीं को आगे हम बिल्ड करने वाले हैं in these coming lectures that I am going to conduct with you all. Now I want you all to pause the screen and just make a note of it. Right? If you want, I'll give you the definition also, or the brief of what is science. So we say systematic study of knowledge is science. Physics is study of natural phenomena. And then you can have these classification or various sections under physics. Now please pause the screen and make a note of it. Alright. Now in this class, I have decided that out of these 6 parts that we have, in today's class, I am going to discuss about current. Okay, so current, electricity. Now let me tell you, this itself is a chapter in your 11th standard physics as well as 12th standard physics. पर वो चैप्टर पर आज नहीं जा रहे, इसका जो बेसिक आपने ऑलरेडी कर रखा है 9th या 10th में, उसी को बिल्ड करना है मुझे आज. सो बेसिकली करंट आप सब जानते हो, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज जब फ्लो होगा, सो करंट फ्लो होता है, ऐसा हम कहते हैं. और वो चार्ज मोस्टली, when we say charge, maximum of time we are going to talk about electron. So current is rate of flow of charge, या basically rate of flow of electrons. इसको अगर आप फॉर्मूला वाइज लिखना चाहो, so आप ऐसा लिख सकते हो कि current is rate is basically dividing the thing by time. So current is charge upon time, ऐसा हम रफली लिख सकते हैं. ठीक है, so if you want you can make note of it. Current is rate of flow of charge. When I say charge, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ. एंड फॉर्मूला वाइज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. अच्छा, ऐसे ही बच्चों, जस्ट टू टेल यू, हम चार्ज को किस में मेजर करते हैं बच्चों? एनी गेसेस? सोचो जरा, चार्ज किस में मेजर करते हैं? नहीं स्ट्राइक हो रहा है, चलो सिंपल पहले. टाइम किस में मेजर करते हैं? वेरी गुड. सो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. करेक्ट. सो चार्ज अपॉन टाइम can be written as coulomb per second. So current coulomb per second, but this coulomb per second is not how we measure current. Current किस में measure करते हैं? एमीटर नहीं, एमीटर तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हो. करंट की यूनिट क्या है? उसी से रिलेटेड है. करेक्ट, इट इज एम्पियर. सो करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में. सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. फाइन. पर दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कि करंट था क्या. आवर मेन मोटो इज टू डिस्कस अबाउट रेजिस्टर्स का कनेक्शन. यस, सुना है आपने रेजिस्टर? आपने रेजिस्टर सबसे पहले सुना होगा जब आपने ओम्स लॉ देखा होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर. ऐसा कुछ याद है? V इज I इंटू आर, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी गुड. I इज करंट. एक्सेलेंट. और ये R कुछ तो था, R इज रेजिस्टेंस. R is resistance. एक बात बच्चों यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि समटाइम्स आई एम गोइंग टू यूज वर्ड रेजिस्टर और कभी मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस. हालांकि इतना ज़्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता है, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टर कब बोलना चाहिए और रेजिस्टेंस कब बोलना चाहिए. जो कंपोनेंट है उस डिवाइस का नाम रेजिस्टर है और उसका काम है करंट को रेजिस्ट करना. सो द प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस, बट द कंपोनेंट ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड एज रेजिस्टर. ओके, अब रेजिस्टर अगर आपको याद है तो ऐसे कुछ आप ड्रॉ करते हैं.
ये इसका सिंबल है और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये जो मैंने ड्रॉ किया, आई शुड ऑलवेज रीड इट लाइक दिस कि ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है. दिस डिवाइस इज अ रजिस्टर और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर. ये क्लियर है बच्चों? डिवाइस इज और द कंपोनेंट इज रजिस्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर इज आर. अब विल टॉक अबाउट, अच्छा इफ यू वांट आप पॉज करके ये नोट कर सकते हैं. चलो जल्दी से, बहुत बेसिक है आज का लेक्चर. फाइन. अब सपोज वी हैव, हमने एक सर्किट डिजाइन किया, ठीक है ना, मतलब आपने जो पढ़ा उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं. सपोज आपने कोई सर्किट डिजाइन किया या आपको एक सर्किट डिजाइन करना है जिसमें आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस 100 ओम्स का चाहिए. आई होप आपको याद है, रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओम. सो आपको 100 ओम चाहिए, पर मार्केट में जो अवेलेबल रेजिस्टर्स है और द पॉसिबल वैल्यूज आर, जो अवेलेबल है मार्केट में, सपोज वो रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस है 10 ओम. ठीक है ना, मतलब आप एक सर्किट डिजाइन कर रहे हो जिसमें आपको रेजिस्टेंस 100 ओम चाहिए, पर जिस शॉप में आप गए या जिस मार्केट में आप गए वहाँ जितने भी रेजिस्टर्स अवेलेबल है उसमें से कोई भी 100 ओम का नहीं है, उनकी वैल्यू 10 ओम है. मैं मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. सो 100 ओम आपको चाहिए और अवेलेबल 10 है, तो आप क्या करोगे, मन में सोचो. हाँ, हम बहुत सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस ले लेंगे और फिर इन सारे रेजिस्टेंस को अगर हम बराबर से अरेंज करें तो हम 100 ओम का रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं. समझा मैंने क्या कहा, कि मुझे बनाना कितना है 100 ओम, पर मार्केट में अवेलेबल कितना है 10. सो मैं 10 को कंबाइन करके 100 ओम बनाऊंगा. अब 10 से अगर आप 100 बनाना चाहते हो, सो यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम 10 ओम टू 100 ओम. एंड व्हेनेवर यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में. ये समझ में है? अच्छा बच्चों, अगर उल्टा होता कि यू वांट और यू आर डिजाइनिंग अ सर्किट जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको चाहिए, पर पॉसिबल वैल्यूज आर 100 ओम. मतलब आप जब शॉप पर जा रहे हो या मार्केट में जा रहे हो, वहाँ रेजिस्टेंस 100 ओम की अवेलेबल है और आपके सर्किट में 10 ओम ही चाहिए. तो नाउ फ्रॉम 100 ओम यू हैव टू गेट 10 ओम का रेजिस्टेंस. यानी आपको 100 ओम के रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करना है कि इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाए 10. इफेक्टिव का मतलब होता है टोटल आपको 10 करना है. तो आप कैसे करोगे? सो नाउ फ्रॉम 100 यू वांट 10, सो आपको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, डिक्रीज. एंड दैट टाइम वी गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. कैसे कनेक्ट करेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या यहाँ तक सब साथ में? सो फ्रॉम स्मॉल वैल्यूज, मतलब छोटे छोटे वैल्यूज से अगर बड़ा वैल्यू चाहिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, देन यू गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. और अगर छोटे वैल्यू से, बड़े वैल्यू से अगर आप छोटा वैल्यू करना चाहते हो, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, देन यू गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये हमेशा याद रखना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ये लगता बहुत सिंपल है, पर टाइम पर ये याद नहीं आता है, क्लिक नहीं होता है आपको क्वेश्चंस में. क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होंगे कि डिक्रीज करना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे कम होके हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा करके कर सकते हैं. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. इफ यू वांट टू डिक्रीज रेजिस्टेंस, टेक लॉट ऑफ रेजिस्टर्स एंड कनेक्ट देम इन पैरेलल. अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, सो बहुत सारे रेजिस्टेंस लो और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दो. सो सीरीज विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस. आर वी क्लियर विद दिस? ये सबको समझ में आया? ओके. अब प्रॉब्लम ये होता है बच्चों, इस तरह ये ठीक है, हमको ये तो 10 से पता था कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज इंक्रीज के लिए काम में आता है, पैरेलल डिक्रीज के लिए काम में आता है. आपका जो प्रॉब्लम या मोस्टली जो बच्चों का इशू होता है वो सर्किट को उनको या
डिफिकल्ट सर्किट्स को देख करके उनको आइडेंटिफाई करने नहीं होता है कि सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। कई बार आपको ऐसा लगता है सीरीज नहीं है तो पैरेलल है, पैरेलल नहीं तो सीरीज है। बट जब आप 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो बच्चों चीज़ें बहुत सिंपल नहीं होती है। सो नाउ जो ब्रिज कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसको एक्चुअल में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम आज के सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन है और कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। ओके, सो फर्स्ट आई विल फोकस ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन सेपरेटली, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन सेपरेटली, एंड देन वी विल डिस्कस सर्किट्स। रेडी है सब आप? वेरी गुड। चलो एक बार फिर से, सीरीज कॉम्बिनेशन कब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब जब रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है। रेडी, लेट्स स्टार्ट। सो विल फोकस ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑल राइट, सो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे पता चलेंगे कि रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है? तो कई बार हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि जब रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन, देन वी से दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, वन आफ्टर द अदर, एक के पीछे एक। जैसे हमारे स्कूल में टीचर ने कहा था रेजिस्टर्स जब ट्रेन के डब्बों की तरह कनेक्टेड हो। ट्रेन देखा है सबने? हाँ, तो उसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। सो वैसे कनेक्शन को आप सीरीज की तरह रिलेट कर सकते हो, बराबर। ठीक है, ये स्कूल लेवल पर या छोटे बच्चों के लिए बराबर है, एक के पीछे एक यानी सीरीज में है। बट इन ट्रू सेंस हम व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज? ठीक है, तो एक ऐसा तरीका जिससे कभी आपको परेशानी नहीं होगी ये आइडेंटिफाई करने में कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सोचो बच्चों, यहां से जो भी करंट आया, यस करंट, इसीलिए करंट मैंने आपको पहले बता दिया। सपोज यहां से करंट आया आई, सो थ्रू रेजिस्टर R1 करंट इज I, फिर यहां पर I और इसमें से भी करंट पास हुआ I। व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, अगर दोनों रेजिस्टर में से करंट अनडिवाइडेड पाथ हो रहा है, अनडिवाइडेड फ्लो कर रहा है, मतलब करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, जितना करंट यहां से आया एग्जैक्टली उतना करंट इसमें से भी फ्लो हो रहा है। सो वी से दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, इस वर्ड को आप याद रखना, करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, करंट स्प्लिट नहीं होना चाहिए। सो रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if current flowing through both the resistors is same and current should not get divided। उनमें से जो करंट पास हो रहा है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, याद रहेगा ये, करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। सी आई विल एडवाइज यू, मतलब मेरा तो ये सजेशन बच्चों, आप ये याद हो कि करंट सेम ठीक है चलो, बट कई बार ऐसा भी सिचुएशन आएगा करंट सेम होगा फिर भी सीरीज में नहीं होंगे, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो हमको क्या याद रखना है, सीरीज में कब है, जब करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। सर थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाओ। देखो बहुत सिंपल है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है। क्या लग रहा है बच्चों, आर दे कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर? यस, तो बचपन का डेफिनेशन, वन आफ्टर द अदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अब सपोज यहां पर एक और रेजिस्टेंस में ऐसे कनेक्ट कर लो R3, तो क्या होगा, जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है वो सेम करंट यहां तक तो पहुंचेगा, बट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आने के बाद ड्यू वो करंट के पास अब देयर आर टू पार्ट्स और पाथ टू फ्लो, दो रास्ते उसको फ्लो करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा करंट यहां जाएगा और थोड़ा यहां जाएगा। सपोज आई टेक दिस एज I3 एंड दिस एज I2, तो मुझे बताओ बच्चों, R1 में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, R2 में से कितना फ्लो हो रहा है, I3, और R3 में से कितना फ्लो हो रहा है, I2। तो तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है या अलग अलग है, अलग अलग है। सो क्या ये तीनों सीरीज में है, नहीं, ऑल्दो अभी भी R1 R2 वन आफ्टर द अदर है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। सो और आप ऐसे सोचो, देखो यहां से जो भी करंट आया वो ये पॉइंट पर जाने के बाद, बाय द वे अगर आपको सीखना है तो ये पॉइंट जहां पे दो रजिस्टर ज्वाइंट हो रहे हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। सो जंक्शन पर दो चीजें ज्वाइंट हो रही है इसलिए जंक्शन, जंक्शन पर करंट स्प्लिट हुआ ना, करंट डिवाइड हुआ,
यानी ये R2 और R3 पक्का सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। सेम वे यहां पर करंट स्प्लिट हुआ, इसलिए R1 R2 भी सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। तो कैसे आपको याद रखना बच्चों, अगर करंट स्प्लिट नहीं होगा तो ही रजिस्टर सीरीज में है, अगर करंट स्प्लिट हुआ तो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। पक्का श्योर एकदम अच्छे से, करंट स्प्लिट होगा तो सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, करंट सेम फ्लो करेगा बिना स्प्लिट हुए, देन ओनली द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। एक और तरीका देखो बच्चों, अच्छा अब ये दोनों सीरीज में नहीं है तो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल मत बोलना बच्चों, मैं वापस से कह रहा हूं, सीरीज में अगर नहीं है दैट डज नॉट मीन दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिर्फ ये है कि सीरीज में नहीं है, कैसे आई डोंट नो, बट ये पक्का है कि सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया? अच्छा एक और अरेंजमेंट देखो, जैसे अगर ऐसे एक रजिस्टर है, यहां भी एक रजिस्टर है, यहां भी एक रजिस्टर है, दिस करंट इज रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, करंट ऐसे आया I। बताओ ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्ट आंसर मत दो, पहले आप सोचो करंट कैसे फ्लो करेगा। वॉट एवर करंट एंटर्स R1, क्या वो सेम करंट R2 से होता हुआ, क्या वो सेम करंट R3 से भी पास करेगा? दैट मीन्स इन दिस सर्किट ऑल थ्री ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि तीनों में से सेम करंट अनडिवाइडेड करंट फ्लो कर रहे हैं। बट सपोज बच्चों ये वाले जंक्शन पर मैंने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया R4, प्लीज अच्छा आंसर देना। अब जो करंट R1 से फ्लो करेगा, डू यू एग्री वो सेम करंट R2 से भी फ्लो करेगा? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अभी भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सो R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। पर ये पॉइंट पर आने के बाद करंट ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, क्यों? करंट डिवाइड हुआ। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड नहीं, क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ। सो द मोमेंट करंट गेट्स डिवाइडेड, रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होंगे फिर। हैज एवरीवन रजिस्टर्ड दिस इनटू योर माइंड? क्या सबके दिमाग में बात बैठ गई है? जैसे ही करंट डिवाइड होगा सीरीज कनेक्शन नहीं है फिर। ओके अच्छा, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला, शायद आप सबको ऑलरेडी पता है बट फिर भी मेरा सुन लो। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सो इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, R टोटल का फॉर्मूला यू ऑलरेडी स्टडीड, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, इट इज गिवन बाय R1 प्लस R2, है ना? आपको पता होगा दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में है तो उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय R1 प्लस R2। अच्छा सर अगर 3 रेजिस्टेंस है तो नो टेंशन, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अगर n रेजिस्टेंस है, n मतलब बहुत सारे हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ? R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे करते करते लास्ट Rn तक जाएंगे। आई होप सबको ये लिखने समझता है। इधर n वैल्यूज 1 2 3 ऐसे n, तो लास्ट वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? Rn। सो R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस Rn तक। ये समझ में आया? पक्का? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि R1 is 2 ohm, R2 is 4 ohm, R3 is 6 ohm and R4 is say for example 12 ohm. There are 4 resistors. इनमें से सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 2 ohm है। ऐसे हमको सीखना है बच्चों। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है? 12। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट देयर आर 4, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। व्हाट इज R1? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, सो 4 प्लस 6 10 22 24। देखो बच्चों, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट यू गॉट? कितना इक्विवेलेंट? 24 ओम। सबसे बड़ी वैल्यू क्या था? इंडिविजुअली सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 12। और इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 24। मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे भी ज्यादा आंसर आ रहा है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कि जब बहुत सारे रजिस्टर से आपको इंक्रीज करना होता है रेजिस्टेंस, यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज। सो नाउ प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज बड़े से भी बड़ा। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 12।
तो ये 12 से भी बड़ा आंसर आने वाला है. If you want, please write it down. When number of resistors are connected in series, the equivalent resistance is बड़े से भी बड़ा. फिर से कहूँ, when number of resistors are connected in series, the equivalent resistance, total resistance, is बड़े से भी बड़ा. When I say बड़े से भी बड़ा मतलब 12 ओम सबसे बड़ा है तो उससे बड़ा आंसर आएगा. To give you practice, suppose ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है और ये 14 है, 1/4. तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई? 14. इफ यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज, आंसर क्या आएगा? 14 से ज्यादा. अंडरस्टूड? ये आपकी थिंकिंग आप डेवलप करो कि जब सीरीज कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा? जो भी हाईएस्ट वैल्यू उससे भी ज्यादा आने वाला है. तो सीरीज के बारे में क्या याद रखना है? करंट डिवाइड नहीं होगा, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 2 इज R1 प्लस R2. बहुत सारे तो ये फॉर्मूला होगा. एंड when number of resistors are connected in series, the overall resistance is बड़े से भी बड़ा. Is that clear? Same way बच्चों, we shall now discuss for parallel combination. If you want, screen को pause करो और इसको आप note कर सकते हैं. Okay, now let us discuss about parallel combination. Parallel combination. ओके, अब पहले बचपन वाला तरीका. पैरेलल में कब होता था? सो वी हैव वन रेजिस्टेंस R1 एंड एक और रेजिस्टेंस है सपोज R2. ठीक है, दिस पॉइंट इज सपोज A एंड दिस पॉइंट इज सपोज B. तो व्हाट वाज योर बचपन का मेथड? व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, ट्रेन के डब्बों की तरह, सो दे आर इन सीरीज. यहाँ पे रेजिस्टेंस एक के ऊपर एक है, ऊपर नीचे. सो आगे पीछे वन आफ्टर द अदर सीरीज, ऊपर नीचे मतलब पैरेलल. ऐसा बचपन में हम पढ़ते हैं. ठीक है, दैट वाज बचपन. पर अभी कॉन्सेप्चुअली समझो. ये लग रहा है ना पैरेलल है? हाँ. अब ये पैरेलल क्यों है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल जब उनके एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट्स. मतलब टेल मी बच्चों, ध्यान से सोच के आंसर देना. R1 रेजिस्टर का एक एंड, वन ऑफ द एंड कौन से पॉइंट पर है? R1 रेजिस्टेंस का एक एंड A पर है. R2 रेजिस्टर का भी एक एंड कौन से पॉइंट पर है? A पर. देखो उसका ये वाला एंड यहां से अल्टीमेटली कहां पर आ रहा है? A पर आ रहा है. R1 रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कहां पर है? B पर. और R2 रेजिस्टर का भी दूसरा एंड कहां पर है? B पर. सो व्हेन द एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट, resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected to common points. R1 के ends कहाँ पर है? A और B. R2 भी कहाँ पर connected है? A और B. So resistors are said to be connected in parallel when the ends are connected to common points. सीरीज के लिए क्या था? करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए. पैरेलल के लिए सर ने क्या बोला अभी? कि उनके एंड्स मस्ट बी कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट. एक और तरीका बच्चों, सुपर्ब कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो. ओके, सपोज ओके, थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चों. R1 रेजिस्टर कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? A और B. ठीक है. सपोज पॉइंट A का पोटेंशियल आई राइट VA, अज्यूमिंग कि आपको पोटेंशियल वर्ड याद है. ओके. और पॉइंट B का पोटेंशियल VB है. V फॉर पोटेंशियल, B का इसलिए VB लिखा है. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस between A and B? A और B के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? A का पोटेंशियल VA, B का पोटेंशियल VB. आपको चाहिए डिफरेंस तो आप क्या लिखोगे? VA माइनस VB. सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. भाई मेरे पास 100 रुपीज़ है, आपके पास 50 रुपीज़ है. सो अपने पास जो पैसा है उसका या रुपीज़ का डिफरेंस क्या हुआ? 100 माइनस 50. सेम वे पॉइंट A का पोटेंशियल VA है,
पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी. आई कॉल इट एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. R1 के अक्रॉस, R1 अक्रॉस मीन्स उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना है. अब मुझे बताओ R1 कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी. तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना ए और बी के अक्रॉस होगा. और ये सेम वैल्यू वी ए माइनस वी बी आने वाला है. सब थोड़ा अच्छे से समझो, नो प्रॉब्लम बच्चों. बोलो R1 किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में. सो मैं पूछूं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है, तो जितना ए और बी के अक्रॉस होगा. ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए माइनस वी बी है. दैट मीन्स R1 के अक्रॉस भी कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी. अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2. सुपर, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2. सर R2 के एंड्स आर कनेक्टेड टू ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 भी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी. देखो बच्चों, जो आपने बचपन में बाय हार्ट किया था वो शायद आज आपने समझा होगा. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ये वैल्यू है ना. जस्ट टू मेक इट इजी, सपोज दिस वैल्यू आई एम अज्यूमिंग इज 10 वोल्ट, ऐसे. सो क्या मैं इसको भी 10 वोल्ट लिख सकता हूँ, क्या इसको भी मैं 10 वोल्ट लिख सकता हूँ. बोलो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, 10 वोल्ट. What is potential difference across R1, 10 volt. What is potential difference across R2, 10 volt. यानी इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. सच बताइए, आपने पहले लर्न किया होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. क्यों, आई डोंट नो. तो उसका आंसर ये रहा, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स. सिंस द एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स, इसका मतलब दोनों के एंड्स सेम पॉइंट्स के बीच में है, तो जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम इसका भी होने ही वाला है. इज दैट क्लियर. अब लाइफ लॉन्ग ये याद रखना, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज करंट सेम रहता है, करंट डिवाइड नहीं होता है. सेम वे व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए और द एंड्स मस्ट बी कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स. कैसे आइडेंटिफाई करोगे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए. शाबाश. कैसे आइडेंटिफाई करोगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या फिर द एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट. वेरी नाइस. इज दैट क्लियर, एकदम अच्छे से. नाइस. चलो, अब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, ये भी फॉर्मूला आपने कर रखा है, मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, इज 1/R1 प्लस 1/R2. आई होप ये याद है. व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल 1 इज रेसिप्रोकल इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, या 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर 2. सो अगर बहुत सारे हैं तो नो प्रॉब्लम, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1, वेरी गुड, प्लस 1/R2, साथ में चलो 1/R3, लाइक दैट, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, 1/Rn. if there are more than 2 I can go like this. समझ में आया. अच्छा, अब क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला आपने कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिया फॉर 2 रेजिस्टर्स एंड फॉर मोर देन 2 रेजिस्टर्स. अब वैसे एक इंटरेस्टिंग केस करते हैं. चलो, सपोज R1 का वैल्यू इज 6 ओम एंड R2 का वैल्यू इज 3 ओम. आपसे पूछा गया फाइंड देयर इक्विवेलेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Find the equivalent resistance when they are connected in parallel. One convention that we all are going to follow is when they are connected in parallel, उनका equivalent को मैं लिखूंगा RP, resistance in parallel. और जब सीरीज होगा तो हम क्या लिखेंगे, RS. सो आपको R1 पता है, R2 पता है, और आपसे RP पूछा है. रेडी आप फाइंड करने के लिए. चलिए, कितने रेजिस्टेंस दिए हमको, बहुत सारे हैं, only 2. When there are only 2, what is 1/R equivalent? 1/R1, that is 1/6 plus 1/3. आई होप आपको ये सिंप्लीफाई करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, या LCM 3 plus 6 divided by 18, you will get 9/18. Now when you take reciprocal, RP का वैल्यू क्या आएगा, RP is 9/18. so reciprocal समझता है, 1/RP का उल्टा RP, 18/9 will give you 2 ohm.
ऑब्जर्व केयरफुली, R1 was 6, R2 was 3 और RP कितना आया 2. R1 और R2 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन थी? R2. हाउ मच वॉज द वैल्यू? 3. और आंसर कितना आ रहा है? 2. मतलब छोटे से भी छोटा. फॉर सीरीज व्हाट डिड आई टेल यू? व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, आंसर बड़े से भी बड़ा आएगा. व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कम होगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? छोटे से भी छोटा. So when number of resistors are connected in parallel, the effective resistance will be छोटे से भी छोटा. If you want, please make a note of it. When number of resistors are connected in parallel, the effective resistance will be छोटे से भी छोटा. Is that clear? When number of resistors are connected in parallel, effective resistance is छोटे से भी छोटा. Has everyone understood it? आया सबको समझ में ये? 100% पक्का? ओके. सो एक बार फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या बोलोगे? यस, करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर और ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव वैल्यूज बड़े से भी बड़ा. पैरेलल में क्या बोलोगे? एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल. ठीक है. एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? छोटे से भी छोटा. क्लियर है ये? सबको समझा? ओके. सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स इफ यू वांट. ठीक है. अब तक जो हमने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको 2 या 3 आज के सेशन में सिंपल से क्वेश्चन कराता हूँ. एंड देन इन नेक्स्ट सेशन we shall discuss about few more questions based on series and parallel. एकदम सिंपल बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, this is point A, consider this to be point B. 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 6 ohm. My first question to all of you, identify ये सब रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में. I'll take pause of 10 seconds. You all think, how are these resistance connected in series or parallel? Alright, कितने लोगों को लग रहा है पैरेलल? Be honest. अच्छा, बाकी लोग सीरीज. क्यों लग रहा है पैरेलल? बचपन ऊपर नीचे ना. अनफॉर्चुनेटली बच्चों पैरेलल गलत है. क्यों सर, ये तो ऊपर नीचे है. ट्राई टू रिकॉल अपना तरीका क्या था. फॉर 2 ओम एक एंड यहाँ पर ए पर कनेक्टेड है, दूसरा एंड यहाँ पर है. 3 ओम का एक एंड यहाँ पर है, एग्रीड, तो दूसरा एंड तो यहाँ पर है ना, जहाँ पर 2 एम का एंड है ही नहीं समझा. 2 ओम का एंड्स ए और सपोज एक्स के बीच में है, तो 3 का भी मैं एक्स लिख सकता हूँ, बट ये थोड़ी एक्स होगा, ये थोड़ी ए तो इधर है ना, और ये दोनों में कनेक्शन ही नहीं है. इसका मतलब 2 and 3 आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल. सीरीज वाला सोच, वॉट एवर करंट एंटर्स हियर, देयर बी वो सेम करंट, सेम करंट, सेम करंट, सेम करंट, सब में से फ्लो होने वाला है. देयरफॉर ऑल ऑफ दीज रेसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. यही मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों. जब आप सर्किट देखो तो आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए. करंट डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, पोटेंशियल सेम है या नहीं, एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स और नॉट. ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस ही वो आने वाला है. सो जो करंट 2 एम्प से फ्लो कर रहा है, क्या वो सेम सब में से जा रहा है? एंड देयरफॉर व्हाट विल बी आर एस. आई होप सबको समझा आर एस क्यों लिखा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो सीरीज में तो सिंपल फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है बोलो जरा, बोलो. यस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस I5. 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है. सो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6. चलो 6 प्लस 4 10, 5 3 8 into 10, टोटल 20 आया. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20. सिंपल येट ट्रिकी है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल सोच के आंसर देना बच्चों. चलो, ए फॉर एप्पल आपने पढ़ा है ना,
उसी से स्टार्ट करते हैं. सपोज वी हैव अरेंज रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट ए, ऐसे. दिस इज मान लीजिए दिस इज 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2. मुझे आपसे पूरा आंसर नहीं चाहिए बच्चों, मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप कैसे सोचते हो. चलो, क्वेश्चन इज व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है. कैसे सोचोगे आप? स्टार्ट थिंकिंग. मैं बताऊं कैसे सोचेंगे? चलो, आपको ए और बी के बीच में फाइंड करना है ना, तो आप करंट ए से स्टार्ट करो. ठीक है, ये करंट ए से स्टार्ट होके इस जंक्शन, याद है पॉइंट जंक्शन पर पहुंचा. जब जंक्शन पर करंट पहुंचेगा तो यहाँ करंट थोड़ा जाएगा और थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा. सपोज दिस करंट इज आई, इसको I1 ले लो और इसको I2 ले लो. अब हम I2 की जर्नी देखें. I2 की जर्नी, I2 जो करंट है, डू यू एग्री, वो सेम करंट आगे जाके 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 इसमें से भी फ्लो करेगा 3 ओम में से. सोचो अच्छे से, देखो दैट I2 करंट, सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस 3 एज वेल एज दिस 3. सो ये भी I2 हो जाएगा. समझा? यानी ये वाले पॉइंट पर करंट स्प्लिट हुआ. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आगे बढ़ना ही नहीं हमको. क्या ये 2 और 3 सीरीज में है? नो सर. क्यों सर? दिस इज I, दिस इज I1, करंट्स आर डिफरेंट. क्या ये दोनों सीरीज में है? नो सर. वेरी गुड, बिकॉज I1 I2 आर डिफरेंट. क्या ये दोनों सीरीज में है? यस सर, बिकॉज I2 एंड I2 करंट इज सेम. क्लियर? सो इस सर्किट का नेक्स्ट जो डायग्राम होगा, क्या वो मैं ऐसा सोच सकता हूं? कैसा सर? सी, आई ड्रॉ 2 ओम एज इट इज, सब साथ में, 3 ओम भी एज इट इज, और ये 2 ओम भी एज इट इज, बिकॉज उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं. सिर्फ मुझे ये पता चला था ये दोनों सीरीज में नहीं है. बट दीज 3 and 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो इन दोनों 3 और 3 का जो सीरीज का आंसर होगा, RS will be 3 plus 3, that is 6 ohms. आई होप ये समझा. क्या वो RS मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? 3 plus 3 6. सो ये दो रेजिस्टर की जगह पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. वाई सर? अरे भाई वो दोनों पॉइंट इधर थे ना. फास्ट हुआ, चल वापस से. ये दोनों सीरीज में 6 साथ में. अच्छा, ये 3 एज इट इज, 2 एज इट इज कॉपी किया. अब वो 6 कहाँ ड्रॉ करूँ? जहाँ से निकाला ना. कहाँ से निकाला? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. वेरी गुड. सो आई ड्रॉ 6 ओम हियर. ये 6 ओम. नाउ आई वांट यू ऑल टू थिंक अगला स्टेप क्या होगा. अच्छा, इसका नाम A है, इसका नाम B है. अभी भी करंट यहाँ से I आएगा, यहाँ से I था, इसमें से करंट I1 था, ऊपर से करंट I2 था. सो अभी भी I2, हाँ ये दोनों में से तो सेम करंट था, तो सीरीज में से भी उतना ही जाएगा. सो अभी भी ये दोनों सीरीज में तो नहीं है, बिकॉज करंट्स आर डिफरेंट. बट थिंक मेरे बच्चों, सपोज ये पॉइंट का नाम P है और ये पॉइंट का नाम Q है. ऐसे क्यों? ऐसे. यू कैन गिव XY ऑल्सो. ऑलराइट, टेल मी, 3 ओम का एक एंड P पर है. सब साथ में रहो बच्चों प्लीज. 3 ओम का एक एंड इज कनेक्टेड टू P. 6 ओम का भी एक एंड इज कनेक्टेड टू P. 3 ओम का अदर एंड इज कनेक्टेड टू Q. और वही 3 ओम का अदर एंड इज, सॉरी 6 ओम का भी अदर एंड इज कनेक्टेड टू Q. फिर से 3 ohm is connected between P and Q. 6 ohm is also connected between P and Q. That means 6 and 3 are connected in शाबाश parallel. यहाँ तक सब साथ में. So that means these two are now connected in parallel. और अगर ये दोनों parallel में है, so how to find parallel वाला value? 1 upon RP is 1 upon R1 plus 1 upon R2. और अगर लकीली आपको याद है, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 6 और 3 का वैल्यू लिया था, तो हमने ऐसे लिखा था 1/6 प्लस 1/3. ट्राई टू रिकॉल, तो आरपी का वैल्यू 2 आया था. याद आया बच्चों? सो दिस वाज फर्स्ट स्टेप, दिस वाज सेकेंड स्टेप. अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ नहीं, अब सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे. कैसे सर? तुम्हें बताता हूँ. सो क्या हुआ बच्चों? दिस 6 and 3 दोनों मिला के 2 होने वाला है. ओके, क्या इसमें चेंज हुआ? नो. इसमें चेंज हुआ? नो. इधर चेंज हुआ? यस. सो शैल वी ड्रॉ दैट? यस. सो लेट मी ड्रॉ दैट. सो ये A है, 2 ओम का रेजिस्टेंस. फिर यहाँ B है, देयर आल्सो वी हैव 1 2 ओम का रेजिस्टेंस.
इतना पक्का है ना बच्चों? अब इनका इफेक्टिव आपने फाइंड किया, सो इंस्टेड ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स आपको 2 ओम ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो कौन से पॉइंट्स के बीच में आएगा? P और Q के बीच में। सो ये P है, ये Q है, ये रहा 2 ओम का रेजिस्टेंस। सच बोलो, समझा? समझा? ओके। अब बताओ, ये 2 से जो करंट आ रहा था, क्या वो सेम करंट इधर से फ्लो होने वाला है? करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। वॉट एवर करंट एंटर्स फ्रॉम हियर, दैट सेम करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू ऑल द 3 रेजिस्टर्स। सो नाउ द ओवरऑल आंसर बिटवीन A एंड B, सो अभी RS क्यों नहीं लिखा? लिख सकते, मैं RAB लिख रहा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B will be 2 plus 2 plus 2, 3 times of 2, that is 6 ohms. Followed? Let me revise this question completely. चलो साथ में रहना मेरे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कैसे सोचना आपने? यहाँ से करंट आप स्प्लिट करोगे, स्टार्ट करोगे, जो यहाँ पर आपका स्प्लिट हुआ, जैसे ही करंट स्प्लिट हो, मतलब ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ओके, बट I2 जो करंट था वो दोनों में से सेम फ्लो करेगा, 3 ओम 3 ओम में से, यानी ये 3 और 3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। आई गॉट द वैल्यू एज 6। ओके, तो मैंने सर्किट को फिर से ड्रॉ किया, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, बट दिस 3 plus 3 gave me what? 6। कहाँ ड्रॉ करना था? सो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिनका मैंने नाम रखा P और Q, सो बिटवीन P एंड Q आई ड्रॉ 6। फिर सोच, ये 3 ओम का एंड कहाँ पर है? P और Q के बीच में, और 6 का भी एंड्स कहाँ पर है? P और Q के बीच में। दैट मीन्स 6 एंड 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आंसर कितना आएगा उसका? 2। सॉल्व करके देख लेना, ये हम इसके पहले भी कर चुके बच्चों। सो नाउ इंस्टेड ऑफ दीज 2 रेजिस्टर्स, अच्छा ये 2 एज इट इज, ये 2 एज, और ये दोनों की जगह पर आई ड्रॉ सिंगल 2 ओम रेजिस्टेंस, एंड देन इफ यू सी, तीनों में से सेम करंट फ्लो होने वाला है, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो फाइनली आंसर 6 ओम है। समझा? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सी यू स्टूडेंट्स, सब कुछ आप रिवाइज करके आओगे। सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज का रिक्वायरमेंट क्या है, सीरीज में कब होता है, पैरेलल का रिक्वायरमेंट क्या है, पैरेलल में कब होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइम विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्किट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।